Hi everyone. So in today's class we will be completing the pending questions of the third exercise of the chapter AP. In our previous video we had done till the 10th question. So let us start from the 11th question. The 11th question is, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and the nth term. Okay, let us do the question. So 11th question, Sn is given to you as 4n minus n square. Sn is given to you as 4n minus n square. ठीक है, you have to find the first term, that is your S1. S1 क्या होता है? Sum of first one term. So S1, right? S1 क्या हो जाएगा? 4 into 1 minus 1 का whole square. So this is 4 into 1 which is 3. What is the sum of the first two terms? मतलब S2 मांग रहा है. So S2. So this is 4 into 2 minus 2 का whole square. So this is 8 minus 4. This is 4. अब मांगी है उसने सेकेंड टर्म. S2 क्या होता है? A प्लस A2. ये मेरा A भी था. S2 मेरा 4 है. A मेरा 3 है. A2 क्या हो जाएगा मेरा? A2 हो जाएगा मेरा 1. ठीक है. फिर उसने क्वेश्चन में क्या मांगा था? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, सिमिलरली फाइंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म. ओके, नाउ आई हैव A, आई हैव A2. कैन आई फाइंड D? D इज A2 माइनस A1. सो A2 क्या है मेरा? 1 है. A क्या है मेरा? 3. सो -2. ठीक है. सो आई हैव टू फाइंड A3. सो दिस इज A प्लस 2D. ठीक है. A की वैल्यू क्या थी? 3 थी. 3 plus 2 into -2. So this is -1. Now I have to find A10, which is A plus 9D. 3 plus 9 into -2. So 3 minus 18. So this comes out to be -15. Then I had to find AN. So this is A plus n minus 1 into D. So this is A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2. सो 3 प्लस 2 माइनस 2n. So this is 5 minus 2n. So this is what we had to do in this question. एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं in case we are missing on something. If the sum of the first term, ठीक है, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third, 10th and the nth terms. ठीक है, clear. Next question is, find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers which are divisible by 6. Okay, let's do it. Question number 12. Okay, first 40 positive integers which are divisible by 6. So the first 40 positive integers, the first 40 positive integers divisible by 6 are, पहले तो 6 ही हो गया, फिर आपका 12 हो जाएगा, फिर आपका 18 हो जाएगा, सो ऑन अप टू 6 into 40 विच इज़ योर 240. ठीक है. तो आपका A 6 हो जाएगा. D आपका क्या हो जाएगा? 12 minus 6 विच कम्स आउट टू बी 6. आपका AN क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा. कैन यू फाइंड N? N आपका वैसे 40 है, राइट? ठीक है. आपको सम निकालना है तो आपको S40 निकालना है. क्या होगा? n/2 इंटू व्हाट वुड इट बी? A प्लस L. सो दिस वुड बी 20 इंटू A क्या है आपका? 6 है. 6 प्लस 240. So 246 into 20. Let us find it out. 246 into 20, which comes out to be 4920. So the sum of the first 40 integers which is divisible by 6 is 4920. Let us go to the next question. Question number 13. The next question is, find the sum of the first 15 multiples of 8. सेम वैसा ही है. ठीक है. The first
let me change the color, just a minute. The first 15 multiples of 8 are 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, अप टू 8 इंटू 15. ठीक है, सो दिस इज 8, 16, 24, 32 up to 120, where A is 8, common difference is 16 minus 8, which is 8. An is equal to 120. You have to find S15, which is n by 2 into A plus L, or An. So n by 2, so 15 by 2 into 120 plus 8. So 128 divided by 2 into 15. So 64 into 15. This comes out to be 960. So S15 is 960. So as you can see, this chapter is very simple. बस फॉर्मूला लगाते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा. Question number 14. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. निकाल लेते हैं. Question number 14. ध्यान रखना, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 है, मतलब 50 एंड 0 इंक्लूडेड ही नहीं, वैसे तो ऑड नंबर्स है ही नहीं, बट अगर बोलता ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 51 तो 1 एंड 51 आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 49. ठीक है, सो दीज नंबर्स आर इन AP. ठीक है, विद A एज 1 एंड D क्या है इनका 3 minus 1 विच इज इक्वल टू 2. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स. अच्छा, पहले आपको n की वैल्यू तो चाहिए होगी, बिकॉज इसने तो बोल दिया बिटवीन, तो आप n की वैल्यू निकालोगे. an आपको पता है आपका 49 है, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच कम्स आउट टू बी 41. a की वैल्यू क्या है जी 1 है, n माइनस 1, d क्या है जी आपका 2 है. So n minus 1 is equal to 49 minus 1 by 2. So n is equal to 24 plus 1. So n is equal to 25. So you have to find S25. S25 would be 25 by 2 into A plus An. A is 1 and An is 49. So this is 25. So 25 का square, which is equal to 625. So I hope this question is clear to you. ठीक है, let us go to the next question. पढ़िए, word problem है first. A contract on construction job specifies a penalty for day of completion beyond a certain date as follows. 200 first day की, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed द वर्क बाय 30 days. मतलब पहले दिन पे अगर जो फर्स्ट डे लेट काम का उसकी 200 रुपये की पेनल्टी है, सेकंड की 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, फिर 500, ऐसे चलता जाएगा. अगर उसने 30 days डिले किया तो वो टोटल कितना पैसा देगा. मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, 30th डे की पेनल्टी नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि 30 दिन उसने काम डिले किया तो टोटल पेनल्टी 30th डे को वो कितनी देगा. ठीक है, चलो लेट्स डू इट. Question number 15. Penalty for delay. Penalty for delay on first day rupees 200. Same. Second day 250, 250 आ गया. Third day this is rupees 30. ठीक है, ये आपका चलता गया. सो आपका क्या बना, नाउ 200, 250, 300 so on are in AP. They are in AP. Why? Because A is 200 and common difference आपका 50 है. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, S30 निकालना है. S30 निकाल लो, 30 by 2,
2 into A, that is 200 into 2 plus n minus 1, n is 30 minus 1 into D which is 50. ठीक है, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे ऑफ कोर्स 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस 140, this is 15 into 1850, so this comes out to be 27750. So total penalty for the 30 days is 27750. Total amount of penalty paid is rupees 27750. This is your answer. So I hope this is clear. Let us go to the next question now. A sum of rupees 700 is used to give 7 cash prizes to students for overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each prize. Okay, interesting. आपको उसने क्या बोला, मेरे पास 700 रुपये हैं जिसके मुझे प्राइसेस देने हैं. कितने प्राइसेस देने हैं मेरे को? 7 प्राइसेस देने हैं. 700 रुपये में से 7 प्राइजेस देने हैं मुझे. ठीक है, देने कैसे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, उसको एक्स अमाउंट मिली तो दूसरे को उससे 20 रुपये कम मिलेगी, तीसरे को उससे 20 में से 2 बार 20 कम हो जाएगा क्योंकि सेकंड में से 20 निकाल देंगे, फोर्थ का ऐसा, फिफ्थ का ऐसा, तो ऐसा चलता रहेगा. ठीक है, पहले इसको लिखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा. रॉकेट साइंस नहीं है कोई. देखो, सम ऑफ ऑल प्राइजेस रुपीज 700. लेट द फर्स्ट प्राइज बी ए. सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा आपका? ए में से आप 20 निकाल दो. ठीक है, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड प्राइस में से 20 निकाल दो, सो ए माइनस 40. फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ए में से 20 निकाला, फिर 20 निकाला, फिर 20 निकाला. ठीक है, सो ए माइनस 60. ऐसे आपकी राम कहानी चलती जाएगी. फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? ए, दिस इज ए. ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमा डी. ये आपको पता है -20 है क्योंकि 20 से कम होता जा रहा है एवरी इंटरवल. ऐसे निकाल लो पहले, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? 7 है, S7, सो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू -20, 7/2 इंटू 2a, 6 आ जाएगा. 7-1 6, 6 इंटू -20 -20 आ जाएगा. इससे काट दो, a माइनस 60 आ जाएगा. सो 7 इंटू a माइनस 60. दिस इज द वैल्यू ऑफ S7. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि S7 क्या है? 700 है, बिकॉज सारे प्राइसेस का सम क्या है? 700 है, बिकॉज दैट इज द पूल मनी. तो 700 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस 60. 7 से काट दो, 100 आ गया. तो आपका a क्या हो जाएगा? 100 प्लस 60, दिस इज 160. सो द फर्स्ट प्राइस 160 है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द प्राइसेस. ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस 1 2 3 4 5 6 7. तो 160, फिर 160 में से 20 निकाला तो 140 आ गया. फिर 140 में से 20 निकाला तो 120 आ गया आपका. 120 में से आपका 20 निकाला आपका 100 आ गया. 100 में से आपका 20 निकाला आपका 80 आ गया. 80 में से आपका 20 निकाला आपका 60 आ गया. 60 में से आपका 20 निकाला 40 आ गया. सो द 7th पर्सन विल गेट 40 रुपीज़ एंड टोटल सम 700 है. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. 17th. In a school, students
थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आपके लिए रेलेवेंट ये है। क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, क्लास 2 2 ट्रीज करेगा अप टू क्लास 12। मतलब फर्स्ट क्लास ने 1 ट्री प्लांट किया, सेकेंड क्लास ने 2 ट्रीज प्लांट किया, थर्ड ने 3, 4 ने 4, 5 ने 5, 6 ने 6, 7 ने 7, 8 ने 8, 9 ने 9, 10 ने 10, 11 ने 11, 12 ने 12। आपको बताना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अच्छा एक मिनट, ये सेक्शंस का भी कोई रेफरेंस होगा पक्का। ओके, a section of class 1 will plant, there are 3 sections of each class। ओके, तो इसमें जो हमारी फर्स्ट क्लास है, सो एक ट्री हर सेक्शन प्लान करेगा और 3 सेक्शन और 3 ट्रीज। जो सेकंड क्लास है 2 ट्रीज पर सेक्शन। 12th क्लास है 12 ट्रीज पर सेक्शन, सो देर आर टोटल 3 सेक्शंस। लिखते हैं इसको, समझ आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है आपकी? 12। नंबर ऑफ सेक्शंस पर क्लास 3। सो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1, ये है आपका। एक ट्री प्लांट करेगा पर सेक्शन, टोटल सेक्शन कितने हैं? 3, सो 3 बाय क्लास 2। 2 ट्रीज एक सेक्शन प्लांट करेगा, कितने टोटल? 3, सो 6 हो गए। क्लास 3, 3 इंटू 3 9, ये सीक्वेंस में चलता जाएगा। एंड नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 12, 12 इंटू 3 36। आपको कितने निकालने? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर प्लांटेड। सो पहले आप लिखोगे द नंबर्स 3, 6, 9 अप टू 36 फॉर्म एन AP with A as 3 and D as 3। ठीक है, 6 minus 3 which is 3। आपको निकालना है S12। ठीक है, so this will be 12 by 2 into A plus L, 3 plus 36, so this will be 12 by 2 into 39, so this would be 6 into 39 which comes out to be 234। So total 234 trees will be planted by the entire school। I hope it is clear। Next question, logs वाला important, इसी बार बोर्ड्स में आया था। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in bottom row, 19 in the next, 18 in the next, and so on। In how many rows 200 logs placed and how many logs are in the top row? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें। लिखो जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो कितनी है जी? 20। सेकेंड रो में कितनी है जी? 19। थर्ड रो 18। सो नंबर्स क्या हो गए हमारे? 20, 19, 18 सो ऑन। ठीक है, तो ए की वैल्यू 20 आ गई, डी की वैल्यू क्या आएगी जी? 19 माइनस 20 which is equal to -1। okay, now you need to find that in how many rows are the 200 logs placed। total number of logs कितनी है? 200 है, तो आपको SN की वैल्यू दी है, तो आपको N क्या है? नंबर ऑफ लॉग्स। N इज द नंबर ऑफ लॉग्स। टोटल लॉग्स कितनी है? 200, तो आपको SN के फॉर्मूले से N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। SN इज इक्वल टू N by 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, सो 200 इज इक्वल टू N निकालना है N by 2, 2 इंटू 20 प्लस N माइनस 1, N तो आपको निकालना है, D है आपका -1। 200 इज इक्वल टू N by 2 इंटू 40
minus n plus 1. So 200 into 2 is equal to n into 41 minus n. So 41n minus n square minus 400 is equal to 0. So n square minus 41n plus 400 is equal to 0. अब आपने ये सब किया ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, सो आई थिंक यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम, राइट. अब इसको फैक्टराइज करना है. 400 को करना है. सो 200 200 2 से किया 50 आ गया, 2 से किया 25 आ गया. अब देखो 16 एंड 25 आ रहा है, 16 एंड 25. तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. सो n कॉमन लिया, n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0. सो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू 16 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू 25. ठीक है. अब क्वेश्चन में पढ़ो, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो. हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो. एकदम टॉप रो पे हमारी कितनी लॉग्स होंगी. n हमारा 16 आ गया, n हमारा 25 आ गया. एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, ध्यान से पढ़ो. अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है. ये फिगर भी दी हुई है, देखो. 200 logs are stacked in the following order: 20 in the bottom, 19 in the next, 18 so on. How many rows are there in which 200 logs are placed? तो n की दो वैल्यूज आ गई, 16 एंड 25. अब आपको क्वेश्चन में मांगा है हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो. अब आपको दिखाना कि टॉप रो आपकी 16 है या 25 है. ठीक है, 16 है या 25 है. ठीक है, चलो जी, लेट अस डू इट. नाउ टॉप रो में कोई तो लॉग होगी ही होगी, तो उसके ऊपर जो भी रो होगी उसमें कितनी लॉग्स होंगी, 0 होंगी. मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी लॉग 1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं, फिर उसके ऊपर 1 2 3 ऐसे करके हैं, फिर ऐसे करके कुछ ना कुछ चल रहा है आपका. जो ये वाली रो होगी इसमें कितनी लॉग्स होंगी आपकी, 0 लॉग्स होंगी. अगर मुझे पता चल जाए कि किस रो में 0 लॉग्स होंगी, तो उससे नीचे वाला जो नंबर होगा, उससे कम जो नंबर होगा, दैट विल बी माई लास्ट रो. तो पहले मैं ए एन को 0 लेके एन की वैल्यू निकाल रहा हूँ. लेट ए एन बी 0. सो दिस वुड बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. दिस इज इक्वल टू 0, राइट. नाउ ए की वैल्यू 20 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, -1 0. सो 20 प्लस 1 minus n is equal to 0. So 21 is equal to n. So in the 21st row, there will be 0 logs. So 25 तो हो ही नहीं सकता. n cannot be 25 because 21st row will have 0 logs. So let us write n cannot be 25 because 21st row has 0 logs. अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th रो, दैट इज a16. So this is a plus 15d, 20 plus 15 into -1, so this is 5. So in the last row, that is the 16th row, there are 5 logs. I hope this question is absolutely clear to you. Now the next question. A spiral. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A, B, starting with center A of radius 0.51, 1.52 as shown in figure. What is the total length of spiral made of 13 consecutive semicircles? ठीक है. अच्छा, लेंथ ऑफ सेमीसर्कल क्या होती है, सेमीसर्कल की बात कर रहे हैं. एक सेमीसर्कल की लेंथ क्या होती है, पाई आर होती है. पाई आर होती है, क्यों, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है. तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, पाई आर होगी. क्या ये बात एकदम क्लियर है आप लोगों को.
लिख देते हैं पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, ये हाफ ऑफ 2 पाई आर होगी। आपको भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे पॉइंट ए था, ठीक है, अच्छा सॉरी, हमने बी से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने एक खींचा, फिर हमने दूसरा खींचा सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल खींचा, ठीक है, फिर दूसरा सेमी सर्कल खींचा, ये L1 है, ये L2 है, फिर हमने तीसरा वाला खींचा, फिर हमने L4 खींचा, फिर हम खींचेंगे L5, फिर हम खींचेंगे L6, ठीक है, फिर हम खींचेंगे L7, ठीक है। तो ऐसे हम L खींचते जाएंगे। अब ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल है ना L हमारी। अच्छा, अब आपको रेडियाई पता है, क्या आप लेंथ निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। आपको पाई की वैल्यू भी पता है, आपको आर की वैल्यू भी पता है। अच्छा, इसमें पाई कांस्टेंट रहेगा, तो किससे बदल रहा है? सिर्फ आर से ही बदल रहा है। तो अब सबकी पहले लेंथ्स निकाल लो, फिर देखते हैं कि क्या बनता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, एक मिनट, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा ओके लॉग्स वाला 19 था, ये हमारा 18 है। एनसीईआरटी के हिसाब से मार्किंग थोड़ी हमारी बुक में डिफरेंट है, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू 2 पाई आर, तो ये आ रहा है हमारा पाई आर, ठीक है। L1 क्या होगा? पाई R1 विच इज 1 इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर, दिस इज 0.5 पाई सेंटीमीटर। L2 क्या है जी? पाई R2, ठीक है। what would this be? This would be 1 centimeter, 1 pi centimeter. Can I write this as 2 into 0.5 pi centimeter? Absolutely. L3G pi R3, this would be 1.5 pi centimeter. रेडियस आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 0.5, 1, 1.5, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर। मैंने क्या कर दिया, मैंने बस कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए उसको एक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा आपका चलता रहेगा, ऐसे ही आप निकाल लोगे अपना L13। L13 क्या होगा? पाई R13, तो 13 इंटू 1.5 इंटू 0.5 विच कम्स आउट टू बी 6.5, so this would be 6.5 pi centimeter, so this is 13 into 0.5 pi centimeter, ठीक है। लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी जी? ठीक है, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13, है ना। ये होगी लेंथ ऑफ स्पाइरल, पूरी स्पाइरल की लेंथ। सो व्हाट दिस वुड बी, L1 क्या था आपका? 0.5 पाई, L2 क्या है? 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 3 इंटू 0.5 पाई, सो ऑन, ये चलता जाएगा, प्लस 13 इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर। अब आप 0.5 पाई को ले सकते हो कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 13 आ जाएगा। तो जो आपका ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 13 है, व्हाट इज दिस? इज एन AP, ठीक है, दिस इज एन AP जिसका आप सम निकालोगे। तो S13 क्या हो जाएगा आपका? 13/2 इंटू 1 प्लस 13, सो दिस इज 7 आ जाएगा, ये आपका 91 आ गया। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगा आपका? लेंथ ऑफ स्पाइरल 0.5 इंटू 22/7 इंटू 91, 13 से कट गया यहाँ आपका, सो 22 इंटू 6.5, 22 इंटू 6.5, दिस कम्स आउट टू बी 143 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, हमने किया क्या? हमारी स्पाइरल थी पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे हमारी स्पाइरल बनती जा रही थी। वो सेमी सर्कल के रूप में थी। सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? पाई आर। पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो गई? पाई आर। पूरा 2 पाई आर है, ठीक है, हाफ कर दोगे तो पाई आर आ जाएगा। तो मैंने L1 की निकाल ली, L2 की निकाल ली, L3 की निकाल ली, फिर सबको मैंने इंटू 0.5 के टर्म्स में लिख लिया। क्यों? क्योंकि एक L1 0.5 था,
L2 क्या था 1 था, फिर L3 क्या था 1.5, तो ऐसे चलता गया, मैंने उसको उस फॉर्म में लिख लिया। लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी, जितनी भी स्पाइरल्स बनी है उन सबको ऐड कर दो, फिर मैंने कॉमन लेके अपना EP वाला कॉन्सेप्ट लगा के लेंथ ऑफ स्पाइरल निकाल दी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, लास्ट के 3-4 कॉन्सेप्चुअल भी एंड इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम्स में बहुत बार आते भी हैं। लास्ट क्वेश्चन, in a potato race, bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato. Okay, this is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. 3 meter, 3 meter. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato. ठीक है, runs back with it, drops it in the bucket. वापस पढ़ते हैं. A competitor starts from the bucket. ठीक है, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, and again runs back to the bucket to drop, and continues till all the potatoes are in the bucket. What is the total distance? Hint भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, पढ़ो. To pick up the first potato and the second potato, total distance run by a competitor is 2 into 5 plus 2 into 5 plus. हिंट से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एकदम इसको हम प्रॉपरली लिखते हैं और फिर समझते हैं. Question number 20. This is the last question of this chapter. Number of potatoes. Number of potatoes 10 है आपके. ठीक है. For the first potato, for the first one, आपने कितना भागा? आप गए, आप 5 मीटर आपने भागा. क्या उसने बोला था 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, आप 5 मीटर भागे. ओके, ठीक है. पोटैटो उठाया, फिर 5 मीटर भागे बकेट में डालने के लिए. तो टोटल कितना हो गया? 5 मीटर इंटू 2, 10 मीटर. अब सेकेंड पोटैटो के लिए देखो. अच्छा, यहाँ पे मेरी बकेट थी. ठीक है, 5 मीटर पे फर्स्ट पोटैटो था, फिर 3 मीटर पे सेकेंड पोटैटो था. ठीक है, फिर 3 मीटर की दूरी पे मेरा थर्ड पोटैटो था. ठीक है, ऐसे चलता गया. अब मैं गया 5 मीटर, पोटैटो उठाया, वापस बकेट के में डाल दिया. फिर कितना मीटर जाऊंगा सेकंड पोटैटो उठाने के लिए? टोटल 8 मीटर जाऊंगा. फिर 8 मीटर आऊंगा पोटैटो डालने के लिए. फिर बकेट से जाऊंगा कितना? 5 + 3 + 3, दैट इज 8 + 3, 11 मीटर जाऊंगा. ठीक है, फिर 11 मीटर आऊंगा डालने के लिए. ऐसे करते करते मैं 10 पोटैटोस के लिए काम करूंगा. ठीक है, समझ आ गई होगी अब आपको. सेकंड पोटैटो के लिए टोटल मैंने 8 मीटर भागा इंटू 2, एक पोटैटो लेने के लिए, फिर दूसरा उसको डालने के लिए 16 मीटर. थर्ड पोटैटो 11 मीटर इंटू 2, 22 मीटर. फोर्थ पोटैटो देखो 5 भागा और 3. ठीक है, सो 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3. ठीक है, +3 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि थर्ड तक मेरा +3 + 3 था. तो यहाँ पे 3 बार मैं 3 को ऐड करूँगा. 5 + 10 14, 14 इंटू 2 28 मीटर. आपको अभी भी समझ अगर नहीं आया तो एक बार वापस देख लो. मेरी यहाँ पे बकेट थी, इसके 5 मीटर्स पे फर्स्ट पोटैटो था. ठीक है, फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक सेकेंड पोटैटो में 3 मीटर था. तो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 8 मीटर हो गया. तो पहले मैं 8 मीटर भागा पोटैटो लिया, फिर 8 मीटर भागा पोटैटो को बकेट में डालने के लिए, फिर दूसरा 3 मीटर पे यहाँ पे पोटैटो था. टोटल मैं कितना भागा? 11 मीटर. वापस 11 मीटर भागा बकेट में डालने के लिए, तीसरे चौथे के लिए. ठीक है, 5 + 3 + 3 + 3. ठीक है, 14 भागा, 14 डाल बकेट में डालने के लिए भागा, तो 28 हो गया. तो ऐसा चल रहा है. ये आप अपने रफ के लिए रख लो. ठीक है, तो 10, 16, 22, 28 form an AP such that A is 10, D is 16 minus 10, this is 6, right? टोटल कितने पोटैटोज हैं आपके? N is 10. तो आपको क्या निकालना है जी? S10 निकालना है. निकाल लो. N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. ठीक है, 10/2, 2A 20 हो गया,
9 into 6, 5, 20 plus 54, 5 into 74, this is 370. So 10 potatoes के लिए आप 370 मीटर भागे. I hope this entire exercise and this question specifically, the last 3 questions actually, are 100% clear to you. In the live class, you can ask me the doubts if you have any, and now it is your duty to do this entire exercise again as a practice and smoothen your concept of the chapter AP. Thank you so much. Have a great day ahead.